Dear children, welcome back in the session of English for class 10th. And as you know, we are studying grammar nowadays. Though this grammar covers only 10%, 8 to 10% in your board exam. But broadly, if you learn the grammar, it helps you immensely in learning English. Means you cannot write, you cannot understand if you don't know the basic grammar. तो ये कहने के लिए तो 10 मार्क्स या 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का एग्जाम आता है, बट एक्चुअली इसकी वैल्यू कॉम्प्रिहेंशन से लेकर और सेक्शन सी के क्वेश्चन आंसर तक है. इफ यू नो द बेसिक्स टेंस, जो मैं बता रहा हूँ, जो कल बता रहा, जो आज बताऊंगा, अगर ये 2 सेशन आपने ठीक से सीख लिए, इन योर लाइफ you will never feel need to learn the answers by heart. You know the story, you can write your own answers. और कितना आसान हो जाता है. इसी तरह से जब हम रीडिंग करेंगे तो वहां भी आपको आसान रहेगा. सो वी इन द प्रीवियस सेशन वी डिस्कस प्रेजेंट टेंस. सो होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट. हमने 2 दिन उस पर लगाए. एंड प्रेजेंट टेंस में वी लर्नड द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेंस विद इन द present tense, and there the use of those different like simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. When should we use those particular tense? उसमें हमने helping verb भी देखी और साथ में main verb भी देखी. The same, exactly the same thing is there in the past tense. Past tense में भी 100% वही है जो present में है. The tenses are the simplest thing to learn. If you have learned the present tense, you will feel that today in this 20 minutes you will learn the past tense. So again, we learned the simple present, present, and I write it here. I learned a simple present. So helping verb and main verb. In present tense, if I write in such a way that I write only the simple. If I write the simple present here, simple present, simple and then present and past, in this way, simple present and past. So you will be able to learn it properly. Then I write continuous. I'm writing it here in short form. So again, present and past, then perfect, present and past, and then perfect continuous, present and past. I draw the line so that you would be able to see it properly. Here the continue, here the perfect, and here, and this will come to that point. So as this past is not properly visible, but we will manage it. Suppose we have learned this, we will learn it at the end because it is not properly visible to you. We see this. I close this, I also close this in this form. So if you will see this, you will find that I have only mentioned the present and helping verb and main verb. You will
नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमने जब सिंपल प्रेजेंट कहा था तो क्या था? In that simple present, we discussed only the present habit and an action in the present time. हम simple present का use कहाँ पे कर रहे थे? We were using the simple present जो एक action present में हो रहा है, अभी अभी कोई काम हो रहा है या फिर कोई present की habit है, उसको हम किस में बात कर रहे थे? Simple present में. Simply उसको हम आगे past कर देंगे कि the past habit and an action in the past. कोई मेरी past की हैबिट है, I walk 2 kilometer every day and I walked 2 kilometer. दोनों में क्या अंतर आया? एक तो प्रेजेंट की हैबिट आई और एक पास्ट की. एक एक्शन प्रेजेंट में हो रहा, एक पास्ट में. सो ओनली द थिंग इज, अब हमारी हेल्पिंग वर्ब थी यहाँ पे डू एंड डज, डू एंड डज, और मेन वर्ब थी फर्स्ट फॉर्म. आई राइट इट फर्स्ट फॉर्म एंड समटाइम एस और ईएस. अब देखिए, इसको जब हम पास्ट टेंस बनाएंगे, मीन्स उस प्रेजेंट के एक्शन को पास्ट में होने की बात समझाएंगे सुनने वाले को, तो हम सिंपली डू डज के लिए एक वर्ड यूज करेंगे, डिड. जहां पे डू डज लिखा है वहां पे डिड लिख देते हैं, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल रिमेन द सेम, और बाकी यहां पे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे हमने यहां अफर्मेटिव सेंटेंस में एस लगाया था, वैसे यहां हम सेकेंड फॉर्म में यूज करेंगे. बट उसमें कोई ऐसा नहीं है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस और बाकी सबके साथ फर्स्ट फॉर्म, वेदर इट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. इन पास्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा क्या होते हैं? सेकेंड फॉर्म में यूज होते हैं. तो मैंने किया क्या? सिंपली डू डज का डिड बना दिया, और जहां डू डज नहीं था वहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी. माई पास्ट टेंस सिंपल पास्ट इज डन. तीन चीजें याद हैं, पास्ट हैबिट या फिर पास्ट एक्शन. डू डज का क्या करना है? डिड कर देना है. डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर डिड नहीं है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म. दिस इज द सिंपल पास्ट. दिस इज द शॉर्टेस्ट वे दैट कैन बी टॉट टू यू एज फार ग्रामर इज कंसर्न. इसी तरह से कंटिन्यूअस में था. कंटिन्यूअस में आप बताइए, हमने हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ी थी? यू टेल मी, क्या थी हेल्पिंग वर्ब? यस, इज, एम, आर, और मेन वर्ब इज, एम, आर आ गई तो मेन वर्ब ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? आई एन जी. अब हमने ये कब यूज करना था? आई हैड taught to you that we use this present continuous tense. इस present continuous, इसको ध्यान से सुनिए. जब ये टेंस खत्म होगा तो एक सेशन में कहीं में आपका टेस्ट भी लेने वाला, योर सेल्फ टेस्ट होगा, जिसमें आप खुद को मार्क्स देंगे कि आप कितना ग्रामर सीख पाए. सो पे अटेंशन टू दिस. हमने क्या? इज, एम, आर, आई एन जी. इज, एम, आर के साथ हमने क्या देखा? That is, are and ing in continuous tense used कब यूज होती है? When the action is going on at the same time when I am speaking. मेरे बोलने के साथ साथ, means it gives a feeling as if the action is not over. Action खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा है, present time के साथ चल रहा है, अभी going on. You are learning grammar. You are लर्निंग. तो प्रेजेंट में जो चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब सिंपली इसको पास्ट में चलना है. अब प्रेजेंट में तो मैंने कहा जो अभी चल ही रहा है, या फिर टू टेल अ फ्यूचर इवेंट, तो वो क्या होगा? किसी फ्यूचर इवेंट को टाइम के साथ जब मैं समझाता हूं, देन आई यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. माने मुझे कहना है कि मैं 10 तारीख को इलाहाबाद जा रहा हूं. I am going to Allahabad on 10th. I am going, ये किसके लिए? करंट में नहीं जा रहा वो, but telling a future event. I use present continuous tense.
इसका पास्ट में क्या होगा, क्योंकि एक्शन तो पास्ट का मतलब पास्ट में खत्म हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसलिए था कि टाइम के साथ चल रहा था, तो इसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सपोज दिस इज प्रेजेंट, दिस इज पास्ट। पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम में मैंने कोई एक्शन स्टार्ट किया एंड इट टुक टाइम एंड देन आई फिनिश्ड इट। उस मतलब ये समझिए एज इफ आई हैव गॉन टू दैट टाइम। यहां से उठ के मैं यहां की बात कर रहा हूं, आई वॉज ड्रीमिंग लास्ट नाइट, तो मैं यहां से उठ के कहां चला गया, लास्ट नाइट में चला गया। लास्ट ईयर आई वॉज इन माई विलेज, तो दिस ईयर से उठ के मैं कहा, सॉरी लास्ट ईयर आई वॉज वॉकिंग इन माई फील्ड्स, इन माई फार्म्स, मैं अपने खेतों में घूम रहा था लास्ट ईयर। तो प्रेजेंट में जहां हूं वहां से उठ के कहां चला गया, उस टाइम में चला गया। आई हैव मूव्ड टू दैट पीरियड ऑफ टाइम वेयर दिस एक्शन वाज एक्सिक्यूटेड। तो यहां पे मैं इसको इज एम आर को सिंपली क्या कर दूंगा, आई विल टर्न दिस इनटू वर्ड्स एंड वर, was and were, and here the same ing. Now अब इसमें क्या हो गया कि मुझे कोई सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, ये पास्ट टेंस स्पेशली आपको दिया हुआ है, दिस इज स्पेशली गिवन टू यू, इस पास्ट टेंस को आपको स्पेशली दिया है। अब आते हैं परफेक्ट पे। तो परफेक्ट में अगेन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या थी, इट वाज हैज एंड हैव, और जो इसकी मेन वर्ब थी वो थी थर्ड फॉर्म। जब मैं इसको पास्ट कर देता हूं देन इट बिकम हैड, ओनली हैड, और ये बन जाती है द सेम थर्ड फॉर्म। गॉट इट। अब इन दोनों को समझते हैं। पास्ट में मैंने इज एम आर प्रेजेंट में लिखा था, तो वो इज एम आर क्या था, इज सिंगुलर नंबर, ही शी इट के साथ एम आई के साथ आर विद यू एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स, और आईएनजी तो कॉमन है वर्ब पे। इसी तरह से यहां पे जो वर्ज एंड वर आया, तो यू एंड ऑल द प्लूरल, यू वाई ओ यू यू, और सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर यूज करेंगे और सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ज। आईएनजी है। यहां हैज हैव क्या था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही शी इट हैज, ऑल द रेस्ट हैव एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म। यहां पे क्या हो गया, हैड है तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कॉमन। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। इफ आई हैव स्पेस हियर देन आई विल ट्राई टू गिव इट इन एन ओवरव्यू, सिंगल व्यू। कुछ स्पेस बन गया है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पे पहले लिखते हैं। प्रेजेंट, यू मे कम क्लोज टू योर टेलीविजन बिकॉज द फॉन्ट साइज इज गोइंग स्मॉलर नाउ। प्रेजेंट, सो प्रेजेंट में हमारा था एज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, एंड हियर वी वर यूजिंग आईएनजी। गॉट इट। अब यहां पर हम सिर्फ क्या कर देते हैं, पास्ट में हैड कर देते हैं। वी यूज ओनली हैड इफ इट इज विजिबल देयर। इसको मैंने हैड बीन कर दिया एंड देन आईएनजी इज द सेम। ये सेम है, दिस इज सेम, इट इज नॉट विजिबल। हैज हैव का हैड कर देना, बस यही सेम चीजें हैं। अब इस ओवरव्यू में देखिए व्हाट यू हैव डन। एक बार मैं क्विक से इसको रिवाइज करता हूं। सिंपल प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट हैबिट थी एंड प्रेजेंट एक्शन था,
उसको मैंने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट हैबिट कह दिया, पास्ट एक्शन, एंड आई यूज्ड डिड। ये डिड क्या दिखाएगा कि समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, इज एम आर। ये इज एम आर जो था कॉन्टिन्यूअस में, उसको क्या कर दिया, वज वर। ये इज एम आर एंड आई एन जी वॉज शोइंग दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी टाइम के साथ साथ जितना करंट एक्शन चल रहा है, करंट टाइम के साथ वो एक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज एम आर। अब उसको मैंने पास्ट में जाकर के किसी टाइम पीरियड में एक्शन कंप्लीट होने की बात कर रहा हूं। सो वज वर, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। लास्ट ईयर आई वॉज स्टडिंग इन क्लास 11th। तो अभी से उठ के, इस क्लास से उठ के हम 11th की क्लास में चले गए पास्ट में, और उस पीरियड को याद कर रहे हैं। सो दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ अ वर्ब। अगेन परफेक्ट में क्या है, परफेक्ट में प्रेजेंट में हैज हैव है, मीन्स सम एक्शन दैट हैज टेकन प्लेस इन द रिसेंट पास्ट और उसका इफेक्ट अभी तक है, और उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव स्टडीड मैथ्स, तो अभी अभी पढ़ी है, और उसको पास्ट में बोलना है। मीन्स अब जो मैंने अभी प्रेजेंट में कुछ देर पहले शुरू किया था एक्शन, और इसका इफेक्ट मेरे पे अभी तक था, प्रेजेंट तक, मैथ्स पढ़ने का। मैथ्स मैंने यहां से पढ़नी शुरू की 1 घंटा पहले, और यहां पहुंच गया, तो इफेक्ट है प्रेजेंट में, इसलिए यूज आया। अब मैं उठा के इसको पास्ट में ले जाता हूं, इधर पास्ट में, जैसे यहां आया था, मैं पास्ट में बोलता हूं कि मैंने कभी क्रिकेट खेला था, मैंने यहां स्टार्ट किया था और यहां खत्म हो गया था। तो मैं इस टाइम पीरियड को याद करके बोल रहा हूं, हैड डन, इस टाइम पीरियड को याद कर रहा हूं मैं। हैड डन मीन्स पास्ट में भी और पास्ट, आई डिड इज द पास्ट, एंड आई हैड डन उससे भी ज्यादा पास्ट। बताइए ना समझ में, डू यू अंडरस्टैंड दिस? हैड विल बी यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द वेरी पास्ट, बहुत दूर जिसे हम कहते हैं पास्ट में। देखिए, आई एट माई ब्रेकफास्ट, आई टुक माई ब्रेकफास्ट, एंड आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट, एंड आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। देखिए 3 चीजें हैं, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई टुक माई ब्रेकफास्ट, एंड आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट। ये तीनों चीजों की अलग अलग मीनिंग आई। व्हेन आई से आई टुक माई ब्रेकफास्ट, तो ये क्या है, एक पास्ट में एक्शन को डिनोट कर रहा है कि समवेयर इन द पास्ट आई टुक माई ब्रेकफास्ट। जो आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ये भी पास्ट में लिया था, बट स्टिल आई हैव एन इफेक्ट ऑफ दैट ब्रेकफास्ट, माई स्टमक इज फुल और व्हाटसएवर। अगर वो कहता आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट, तो मीन्स इज टॉकिंग अबाउट द फर्देस्ट पास्ट। वो पास्ट में ले लिया था, अभी वो चाहे तो ले सकता है, आई हैड टेकन। तो यू कैन यूज द टेंस इन दिस वे। सो टेंस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है समझना, सिचुएशन, कि किस सिचुएशन में मैं कौन सा टेंस यूज करना है। द सिचुएशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू। सो अगर फिर आगे बढ़े तो हैज हैव के साथ मैंने यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने क्या किया था, हैज हैव बीन। हैज हैव बीन का क्या मतलब था, समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट और वो चल रहा है प्रेजेंट में, अभी फिनिश नहीं हुआ, फ्यूचर में भी जा रहा है। एन एक्शन दैट हैज स्टार्टेड इन द रिसेंट पास्ट एंड कंटिन्यूइंग, अभी भी चल रहा है और आगे भी जाएगा फ्यूचर में। सो इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें डेफिनेटली क्या होता है, एक इंडिकेशन टाइम का है, एक्शन के होने के टाइम का। सो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ बीन है, एंड मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो ये जो टेंस है, इसमें जो टाइम को डिनोट करने के लिए कल हमने डिटेल में पढ़ा था, सिंस एंड फॉर भी यूज होता है। एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल यही बात कहां यूज होती है, पास्ट टेंस में।
अब पास्ट टेंस में जो इफेक्ट है, जो सिचुएशन है, वो क्या है बोलने वाले की कि he had started something in the past and continued for a time and then it finished. अब वो फिनिश्ड हुई या अनफिनिश्ड हुई, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. हमारा मतलब है समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड वेंट ऑन फॉर अ टाइम. कोई बात ऐसी थी, कोई एक्शन ऐसा था, कोई वर्ब ऐसी थी जो पास्ट में स्टार्ट हुई और पास्ट में ही कुछ टाइम तक चली, प्रेजेंट में नहीं है अभी वो, तो चलती रही कुछ टाइम तक पास्ट में. यहां पास्ट परफेक्ट में तो पास्ट में हुई और खत्म भी हुई, बट यहां हुई और चलती रही कुछ टाइम तक, बट प्रेजेंट में नहीं है. तो इन सच अ सिचुएशन, जैसे टेक एन एग्जांपल, इफ आई से आई हैड बीन वर्किंग इन GIC श्रीनगर. अभी मैं वहां नहीं हूं, बट फॉर ए टाइम पीरियड आई हैड बीन वर्किंग इन श्रीनगर फॉर 3 years. तो जो मैंने आई हैड बीन वर्किंग कहा, वो एक पीरियड को डिनोट किया पास्ट में, जो एक्शन क्या हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था. सो हियर आई यूज हैड बीन, देन ING, एंड देन अगेन सिंस एंड फॉर. all the rest things, all the things, all the rest of all the things are same. सिर्फ has have का क्या कर दिया है, had कर दिया है. and if I do this, then I only change the tense, I don't change the situation. अब आप इन सब टेंस में ध्यान देंगे तो आपको क्या मिलेगा कि सिचुएशन इज सेम बट पास्ट. चाहे सिंपल प्रेजेंट है, सिचुएशन वही है, हैबिट की बात है या एक्शन होने की बात है, वहां अभी हो रहा है, फिर यहाँ पास्ट में हो रहा है. अब हम जो ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं डिफरेंट, यहां सिर्फ डिफरेंस है. अदरवाइज देखिए फर्स्ट फॉर्म यहाँ SES, यहाँ सेकेंड फॉर्म हो गया, अदरवाइज ING, थर्ड ING. द मेन वर्ब इज सेम. हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंज है, डू की पास्ट फॉर्म क्या होती है, डू, डिड, डन, सो द हेल्पिंग वर्ब इज डिड. इज एम आर की पास्ट फॉर्म क्या होती है, बी वर्ब. बी वर्ब की, बीइंग वर्ब की पास्ट फॉर्म है वाज, वर. ये पास्ट फॉर्म में जब यूज होता है इज एम आर, तो वजर वर हो जाता है. वी आर ओनली चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ब, अदरवाइज द सिचुएशन इज सेम. फिर इसी तरह से हैज हैव का क्या है, पास्ट फॉर्म हैड. आई हैव अ कार, I have a car and I had a car. देखिए हम वर्ब में भी उसे पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं, have या has, had. So had is the थर्ड फॉर्म. तो has have का क्या हो गया, सेकंड फॉर्म. पास्ट फॉर्म मैंने had यूज कर दिया. इसी तरह से has have been का had been कर दिया. अगेन ये जो been वर्ड है, this been word is used at the same way, at the same we are doing in present tense. So we have discussed the past tense. Tomorrow we will do the examples. That on the next session, whenever we come, we will do the examples. Till then, you take the picture of this table, or you can make this table on your notebook and just try to compare this and put yourself in the situation. अपने आप को ऐसी situation में रख के बोलने की कोशिश कीजिए. So we will see the next time you do practice. Thank you very much.